Now, this topic, electrolytic cell, you have heard of basic electrolysis perhaps in ninth and 10th standard. So it is just almost of the same level, just one or two extra points you will be doing in this topic. It's, I think, the smallest section you are going to do in the whole chapter. The first basic term which I have been using since the beginning of the topic is electrolyte. Electrolyte is that substance which can allow the passage of electricity. And either it has to be a molten salt or it needs to be dissolved in water. In any way, electrolyte will be able to pass the electricity. For movement of this electric current, we must have ions present in it, and three substances qualify to be an electrolyte. We know the short form, perhaps you have heard, it's called ABS: acid, bases, and salts. Whenever you do electrolysis, we are going to use an electrode. Electrode is mostly in this case metallic, and under non-metallic, you have only one, that is graphite rod. The function is to basically carry the electric current, and in some cases, to get the metal deposited on the rod also. Under any condition, whenever we do electrolysis, the rod has to be inert in nature. So mostly only two rods you will hear in this topic. One is going to be platinum and second is graphite rod, nothing more than that. Electrodes, as we know, are of two types, cathode and anode. Now these terms cathode and anode here are what you do in physics regularly. So cathode here is going to be connected to the negative pole of the battery. When the reaction occurs, cations will travel to this electrode. In fact, the name which was given by Michael Faraday was based on this itself. कैटायन जाने वाला इलेक्ट्रोड कैथोड और एनायन को अट्रैक्ट करने वाला इलेक्ट्रोड एनोड. That is how you remember it. Since cation is positively charged, electrode itself will be connected to negative pole. Go through all these 4 points. Any doubts before we go ahead? We have to study now two basic electrolysis in our syllabus: molten sodium chloride electrolysis. So in molten sodium chloride electrolysis, we have a container in which this molten sodium chloride is taken. A separator, a wire gauze sort of, is kept in the center, so that the products of electrolysis do not mix or do not react again. Two electrodes are kept which are connected to positive and negative of the battery. The electrolyte is fused, that means molten sodium chloride. Electrodes are graphite electrodes, inert, and direct current needs to be used in all the electrolysis experiments. Cell reactions are very, very simple. Anode chloride ions will travel towards anode. This electron will be donated. Two such chlorine atoms will combine to form chlorine gas. And as in the diagram, you can see chlorine gas bubbles will release at anode. Sodium metal cations will go towards cathode and they will gain electron from the circuit. They will deposit sodium. So a pale greenish chlorine gas is liberated at anode, and molten silvery white sodium will be produced at cathode and will start floating over the molten sodium chloride. Any doubt? I have summarized the answer in one single slide so that for exams you can revise this like your short notes. इसी को आप अपने हाथ से लिखोगे तो आपका सेल्फ नोट्स हो गया. The next one we have is aqueous sodium chloride, electrolysis of aqueous NaCl. Basic construction you will see almost same. Here we have only differences. Instead of pure molten NaCl, we take sodium chloride dissolved in water. Electrodes, source, everything is same, but reactions are going to be drastically different. I will suggest, if you are doing anything else right now, please stop it and 100% pay attention. Answer difficult. First, anode, we are going to have chloride which can show the oxidation.
The oxidation potential of this reaction is minus 1.36 volt. Remember, in this set, there is not only one anion chloride, but there is somebody else who can react, and that is water. If chloride reacts, it will create chlorine gas. If water is undergoing oxidation, it will produce oxygen gas. Oxidation potential of this reaction is 1.23 volt. We can see the oxidation potential is larger than chlorine. Water का chlorine से ज्यादा है. Minus 1.23 is higher value than minus 1.36. That means we expect कि water का reaction जल्दी होगा, fast होगा, सबसे पहले होगा. So we expect that oxygen gas will be the product instead of chlorine gas. But experimental observation shows that chlorine gas is actually produced and not oxygen gas. The reason for this is found to be over voltage or over potential of oxygen being higher than chlorine. Now your textbook says over potential concept is beyond our syllabus, so we will not discuss. But let me tell you this concept very quickly because it's not very difficult to understand. This is an electrode where suppose the reaction occurring is of chlorine. Please pay attention to understand this concept. And two such chlorine atoms give you to form chlorine gas. हम लोग स्कूल लेवल से ये रिएक्शन लिख रहे हैं और बाद में आपको टीचर बताते हैं कि क्लोरीन के बबल्स यहां से दिखेंगे आपको. ओके, वेरी नाइस. प्रैक्टिकली ये गलत है. प्रैक्टिकली क्या होता है, आपने जो यहां फॉर्म किया है ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है. ऐसे एटलीस्ट एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को ज्वाइन करके आपका कम से कम 1 मोल ऑक्सीक्लोरीन गैस क्रिएट होगा और उसको आप कलेक्ट करके गैस में या बबल में कन्वर्ट करना पड़ता है. देन दोज बबल्स आर सीन ओवर हियर. अभी स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 हम लोग जो पोटेंशियल लिखते हैं ई नॉट ऑक्सीडेशन इज माइनस 1.36, वो सिर्फ इस फर्स्ट स्टेप का पोटेंशियल होता है. इसके बाद इसमें और 2-3 एनर्जीज को ऐड करके फिर ये बबल्स फॉर्म होंगे. ये जो एडिशनल पोटेंशियल्स हम लोग ऐड करते हैं उसे कहते हैं ओवर पोटेंशियल और ओवर वोल्टेज. तो अभी इमेजिन करो कि ये प्रोसेस हम लोग ने क्लोरीन के लिए किया और इसमें हम लोग ने क्लोरीन का ओवर पोटेंशियल ऐड किया. ऐसे ही हम लोग ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे, उसमें ऑक्सीजन का ओवर पोटेंशियल ऐड करेंगे. सो वंस यू ऐड द वैल्यू ऑफ ओवर पोटेंशियल, इट इज अंडरस्टूड कि ऑक्सीजन को रिलीज करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन क्लोरीन को रिलीज करना, क्लोरीन का ओवर वोल्टेज कम है और वो जल्दी रिलीज हो सकता है प्रैक्टिकली. Those who are interested, check if you have understood this additional concept. एग्जाम में नहीं आएगा, just to understand what is over potential. Sir, can I explain? We make a molecule in the reaction and we need to convert the molecule into its bubbles so that from the surface you can see physically the gas bubbles are coming. So oxidation potential के साथ हम लोग को और extra potential देना पड़ता है, which is called over potential. In old days, this was called bubble voltage, which was rather a more appropriate term to understand. Bubbles form करने के लिए लगने वाला voltage, bubble voltage. It is denoted by Greek letter eta. So हम लोग क्लोरीन और ऑक्सीजन का वैल्यू कंपेयर करेंगे, but the actual practical potential needed is with addition of over potential. Once you do that, you will understand क्लोरीन को रिलीज करना इजी है, ऑक्सीजन को रिलीज करना डिफिकल्ट है, बिकॉज ओवर पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन is lesser than over potential of oxygen. Just understand it as a concept. Nobody will ask any question on this. If you don't take a screenshot of this, also fine. So will the value be positive or negative? Depends. हर एक गैस का अलग अलग होता है, उसके फैक्टर्स होते हैं, सरफेस पे डिपेंड होता है,
Over potential is like a big unit in electrochemistry. It's in third year BSc they teach. टेम्परेचर, सरफेस का स्मूथनेस, रफनेस, काफी सारा चीज है. तो अगर ऑक्सीजन गैस है, सो इट इज सपोज कमिंग फ्रॉम कार्बन, ग्रेफाइट, तो ओवर पोटेंशियल अलग. स्मूथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ओवर पोटेंशियल अलग. तो इट्स नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू. तो इन अ एक्सपेरिमेंट ऑफ कोर्स वी कैन कंपेयर, बिकॉज इन दोनों का कंडीशन सेम होता है इसके लिए. सो दिस होल पैराग्राफ विच आई शोड यू टेल्स यू ओनली वन थिंग, एट एनोड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड. ये समरी ध्यान में रखना. नाउ लेट अस कम टू कैथोड. अभी देखते हैं कैथोड में क्या हो रहा है. कैथोड सिमिलरली यू कैन हैव टू रिएक्शंस, एक तो सोडियम का और दूसरा हाइड्रोजन का. अभी यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. सोडियम का सॉलिड फॉर्मेशन होने से अच्छा है कि वाटर से हाइड्रोजन गैस जल्दी जल्दी निकले. सो दैट इज व्हाई you will never get sodium metal over here, you will only get hydrogen gas produced. So अभी डिफरेंस समझ लो. जब हम लोग ने मोल्टन NaCl यूज किया था, तब अपने प्रोडक्ट्स थे सोडियम एंड क्लोरीन. अभी हम लोग ने एक्वियस NaCl यूज किया है, तो अपने प्रोडक्ट्स है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. सो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे और अगर आप एक्वियस सॉल्यूशन यूज करते हो, तो आपको मेटल कभी भी नहीं मिलेगा. यू विल ऑलवेज गेट हाइड्रोजन गैस. सो अगर आपको मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको मोल्टन मेथड यूज करना पड़ेगा, नॉट एक्वियस मेथड. टू गिव दिस इंफॉर्मेशन, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स यू हैव इन द कोर्स. ये सिर्फ टेबल जेई नीट वाले देखो, सीईटी वाले भी देखो, HSC वाले कैन इग्नोर दिस. These are all the cases required in your course. तो अलग अलग मटेरियल में कैथोड में क्या मिल रहा है, एनोड में क्या मिल रहा है, इसका ये टोटल समरी है. इसमें सिर्फ NaCl नहीं है, क्योंकि वो हम लोग ने पहले ही डिटेल में किया. अभी तक जितने बार कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, दे हैव कम ओनली ऑन दीज 7-8 मॉलिक्यूल्स. सबसे मजे की बात कॉपर सल्फेट में आपको दिखेगी. जब प्लैटिनम है तो कॉपर और ऑक्सीजन, जब कॉपर इलेक्ट्रोड है तो सिर्फ कॉपर, दूसरा कोई रिएक्शन ही नहीं मिलता है. So sir, cathode won't increase its size. ऑफ कोर्स अगर डिपॉजिट हुआ तो, लेकिन सोडियम में क्या होता है, वो फ्लोट होता है, तो मेटल को स्टिक नहीं होता है. तो जो स्टिक होगा वहां पे साइज विल बिकम फैट, देन यू नीड टू टेक इट आउट बाय मेल्टिंग प्रोसेस एंड ऑल. Now we come to the last part of the topic, that is the mathematical section. We will do numerical problem and chapter is over. This is Faraday's laws of electrolysis. I am not sure whether you have done this. अच्छा एक चीज, HSC में GTB में Faraday's law करके सेक्शन को गायब कर दिया, मतलब है ही नहीं, आपको नाम ही नहीं दिखेगा उसका. लेकिन उन्होंने इसका मैथमेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट रखा है. So the funny thing is they don't mention Faraday, but they do Faraday's laws without mentioning the laws. So here what I'm doing is a complete thing. I cannot do it the way GTB has given. It's totally unscientific way they have given it. So I'm doing it completely here. So HSC के लिए ध्यान में रखना, आप लोग स्टेटमेंट बाय हार्ट मत करो, सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट देखो. That way also for JEE and NEET you need only mathematical part. चलो, we learn Faraday's first law. One thing, make it very clear, which NCERT has very properly given in the book. Faraday discovered this law in 1852-53, when there was no discovery of current electricity or commercially available current electricity. तो जब इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होता था, वो लोग एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते थे जिसका नाम था कूलोमीटर. यू कैन गो ऑन इंटरनेट एंड चेक हाउ इट इज डन. सो कूलोमीटर वाज लाइक अ टुडेज बैटरी वर्जन, और वो कूलोमीटर को सेट करते थे, उससे वो लोग डायरेक्ट करंट देते थे सर्किट में, एक्सपेरिमेंट करते थे. जब कूलोमीटर खत्म हो गया, फिर से कूलोमीटर बनाओ, फिर से एक्सपेरिमेंट करो. दिस वे माइकल फैराडे, दे सेड इन हिज overall like reviews and all, Michael Faraday did some 1500 electrolytic experiments in a time period of around 7 to 8 years, and he collected tremendous amount of data about measurement of volumes, mass,
current, and so many things. And he gave finally these two laws. So अब लोग जो एक स्टेटमेंट लॉ का देखेंगे उसके लिए उसको कम से कम 10 साल लगा था समझने के लिए. एंड दैट वाज लाइक पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी इन हिज टाइम, क्योंकि ऐसा कुछ किसी ने पहले किया ही नहीं था. His first statement says the amount of chemical reaction which occurs at any electrode directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. Very simple thing. What he says is quantity of electricity is Q in coulomb, current passed is in ampere I, and time is T. So Q is equal to IT. सिंपल फिजिक्स का रिलेशन है, कुछ बड़ा डिस्कवरी लगेगा आपको किया नहीं उसने. बट व्हाट आर हिज इंप्लीकेशंस एंड रिजल्ट्स अभी ये देखेंगे हम लोग. दैट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. सो लेट अस बिगिन विद दैट. Conclusions from Faraday's first law. Number 1. The first thing what he discovered was the unit called Faraday. He says that amount of electricity required for either oxidation or reduction is based on stoichiometry of the reaction. So for example, आप लोग ये रिएक्शन देखो, Ag plus इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag. अभी रिडक्शन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स यहां रिक्वायर्ड है? 1 मोल. सो चार्ज 1 मोल पर कितना होगा? देखो ये है आपके एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर. सो आंसर कम्स आउट टू बी 96,487 कूलम पर मोल. For practical purposes, Michael Faraday suggested the value 96,500 coulomb. Those who are in touch with the topic, they will see ये हम लोगों ने Nernst equation के टाइम यूज किया था Faraday. Yes, sir. It's a very standard unit used in several topics. I will extend this concept. ये मैंने सिल्वर के लिए आपको दिखाया. अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड है, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी नीडेड, सॉरी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड विल बी 2 फैराडे. अगर एल्यूमिनियम है तो 3 फैराडे एंड सो ऑन. सो एज मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड, दैट मच इज द फैराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस. माइकल फैराडे ने जब ये डिस्कवर किया था तो उसको पता नहीं था इलेक्ट्रॉन कौन है, उसको पता नहीं था एवोगैड्रो कौन है. He found out this number experimentally and not the way we are seeing it right now. ये माइकल फैराडे के लगभग 70 इयर्स बाद डिस्कवर हुआ कि इसका वैल्यू क्या होता है. तो लोग चलते थे ओके 96,500 यूनिट है, लेकिन क्यों आता है ये बाद में पता चला. Any doubt in this page? I am going to right now do numerical problems on this, only this much section. These are from your GTB. And this year in NEET and JEE दोनों में ये क्वेश्चन आया था. On page 48 of your textbook you can see this. चलो सबसे पहला प्रॉब्लम ये वाला. क्वेश्चन इज हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. पहला इक्वेशन दिया है 1 मोल ऑफ Al plus 3 to Al. एक्सट्रीमली सिंपल सम्स. सो देखो Al plus 3 plus 3 electron becoming Al. So we are utilizing 3 mole of electron. So 3 into 96,500, whatever answer you get. इससे सिंपल प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है, और ये नीट में आया था ये साल. आई एम डिस्प्लेइंग सेकंड एंड थर्ड प्रॉब्लम. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. डाउट रहेगा तो पूछो. जो प्रॉब्लम चल रहा है उसी पे ध्यान देना, इधर उधर मत देखना. MnO4 minus charge is हाँ, Mn7. ये कैसे निकाला? रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर याद है? MnO4 ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -8, तो मैंगनीज +7. समझा? याद आया? ये रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, ऑक्सीडेशन नंबर 11th स्टैंडर्ड. तो जब कंपाउंड्स देते हैं तो उसमें से अपने को उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट का देखो कितना है, और ये दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज द मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेटिंग इट? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? There is oxygen, suppose 4 into 2 is -8 and करेक्ट. plus तो 7. ये -1 टोटल चार्ज है ना उस पे, तो -8 + 7 is equal to -1 टोटल Yes, चार्ज. sir. Got it? Yeah.
यहां तक समझा सब लोगों को? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सम वेरी इजी वंस. तो सर ये थर्ड वाले में भाई 5 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन. वही तो बोला मैंने, चार्ज चेक कर कितना है, +7 बिकमिंग +2. सो 5 यूनिट्स का लॉस हो गया, दैट इज 5 मोल. ओके, तो किसी सब्सटेंस रहेगा ना, तो आपको क्या करना है कि दोनों एलिमेंट्स देखना है और उसका चार्ज चेंज जितना हो रहा है, दैट इज द थिंग. अच्छा, ये कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत जगह आया है, वाटर का प्रॉब्लम. वाटर का ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोग बाय हार्ट करके रखना. वाटर मॉलिक्यूल व्हेन ब्रेक्स डाउन, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. 1 मोल वाटर में से 2 इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. दैट मीन्स 2 फैराडे फॉर 1 मोल. ये रिलेशन बाय हार्ट करके रखो, अपने नोट्स में कहीं पे पॉइंट्स में ध्यान में रखो. प्रॉब्लम में पूछा है 2 मोल ऑफ वाटर, तो इसलिए हम लोग इसका डबल करेंगे, 4 मोल, दैट इज 4 फैराडे. मैंने एंड में, यहाँ पे सबसे एंड में 96,500 का टेबल बना के आपको दिया है. 96,500 1 जा 96,500, 2 जा 1,93,000, 3 जार, तो आपको 6 फैराडे तक मैक्स टू मैक्स एग्जाम में आता है. तो आपके पास वैल्यूज बाय हार्ट है, अदरवाइज वहां पे आप ऑफकोर्स मल्टीप्लाई करके आंसर तो निकाल ही सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट. अभी ये वाला देखो, फेरस ऑक्साइड में Fe इज +2 और फेरिक ऑक्साइड में इट इज +3. सो ये मेरा गलती है, यहाँ पे ये +2 है, ये +3 है. So the change is happening of 1 unit only. So that is 1 Faraday. Sir, when do we do this? जब भी substance का कंपाउंड रहेगा तो एक तो तेरा सीधा आयन रहेगा, जैसे यहाँ पे, ये तो एकदम सिंपल ही है. तो जब मॉलिक्यूल रहता है तो आपको मॉलिक्यूल में से उसको एक्सट्रैक्ट करके देखना पड़ेगा. फॉर दिस रिवाइज योर रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक वंस अगेन. चलो अभी थोड़ा हाई लेवल के सम्स विथ नंबर्स. ये एकदम बेसिक लेवल हो गया, इसी का थोड़ा हाई लेवल. How many coulombs of electricity needed for oxidation of 90 gram water? अभी 90 ग्राम मतलब 5 मोल. वाटर का मोलर मास इज 18. So we just now heard that 1 mole of water is requiring 2 moles of electron. So 5 mole we need how much? 5 Faraday का आंसर. मास दिया है, उसको हम लोग ने मोल में कन्वर्ट करके यूनिटरी मेथड से फाइंड किया. Am I audible? Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, Yeah. So 5 mole will be 10, no? अरे मैंने क्या किया? Yes, you're right. So this will become 965,000. अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एंड द वे आई हैव सॉल्व्ड इट इज अ वेरी वेरी सिंपल ट्रिक. एंड इफ यू फॉलो दिस, आपको ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में या फिर आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट भी कभी करते हो तो आपको टेंशन नहीं आएगा. देखो उन्होंने क्या पूछा है, 100 ml ऑफ 0.1 मोलार KMnO4. अभी पहली बात, जब KMnO4 का रिडक्शन होगा तो इट्स गोइंग टू बी Mn+7 बिकमिंग Mn+2. ये हम लोग ने कहा सुना था, डी ब्लॉक एलिमेंट्स टॉपिक KMnO4 टॉपिक में. तो 1 मोल में 5 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है. लेकिन अभी अपने पास कितना मोल्स है ये हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा. सो आई यूज अ वेरी सिंपल ट्रिक फॉर दिस. अंडरस्टैंड, they are giving us 100 ml of 0.1 molar. तो सबसे पहले when we say any time 1 molar concentration, इसका मतलब क्या होता है? 1 mole per decimeter cube. So if I translate this, it will come out to be 1 liter मतलब 1000 ml will contain 1 mole. ये समझा सब लोगों को? Yes, sir. So if I take 1000 ml of 1 molar any solution, उसमें सोल्यूट का अमाउंट है 1 मोल.
अगर मैंने इस 1000 को 100 किया, दैट मीन्स आई डिवाइडेड बाय 10, सो यहां हो जाएगा 0.1। और उन्होंने प्रॉब्लम में दिया है 0.1 मोलार, तो मैंने नेक्स्ट नंबर को डिवाइड बाय 10 किया, तो बन गया 0.01। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड रिलेशन लिखेंगे, फिर धीरे से वॉल्यूम को चेंज करेंगे जो दिया है, फिर बाद में कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अभी ऐसे भी हो सकता है, आपको कहीं किसी प्रॉब्लम में वो लोग इस तरह से दे सकते हैं। आई विल शो यू अनदर वेरिएशन, टेल सी हाउ यू कैन डू इट। 1000 ml of 1 molar solution contains suppose 1 ml 1 mole, sorry। सो अगर उन्होंने दिया 250 ml, हर टाइम 100 होगा ऐसे कुछ नहीं, 250 ml, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, दिस विल बिकम 0.25 मोल, करेक्ट। mole. तो जो मैंने यहाँ चेंज किया ना, वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ओके, बाद में मैंने प्रॉब्लम में रीड किया कि अरे 1 मोलार नहीं है, मेरे पास 0.1 मोलार है। ओके, तो और एक बार 10 से डिवाइड करो, 0.025. यस, बस आपको नंबर ऑफ मोल मिल गया। तो आपको जो प्रॉब्लम सम बेसिक कॉन्सेप्ट में कॉन्सेंट्रेशन के आते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम में पीएच रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके लिए ये कॉमन ट्रिक हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस समवेयर। सर एक बार थोड़ा शॉर्ट में ट्रिक रिपीट करना, आपको तो आवाज आवाज कैसे हो रहा है? आई थिंक अरे तेरा इट्स नेटवर्क का रेनिंग। कुछ बहुत रेनिंग चल रहा है, नेटवर्क इशू है लगता है। Yes, sir. नाइसली रेनिंग। चलो देखो, 1000 ml of 1 molar will always contain 1 mole. This is a standard relation. So if they are giving us 100 ml, 1000 to 100, I'm dividing by 10. So here also I will divide by 10. 1 upon 10, that's 0.1. Then if I am given 0.1 molar, so this 1 molar I am divided by 10, I will get 0.1. So here it will be 0.01. So basically एक बार वॉल्यूम को चेंज करते जाओ, यहाँ चेंज करो, फिर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करो, यहाँ चेंज करो, दैट्स ऑल। ऑल राइट, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट यस, एवरीवन। गॉट इट। या ये ट्रिक बहुत जगह काम आता है, जब भी आप केमिस्ट्री करते हो, ये बहुत बेसिक ट्रिक यूज होता है। चलो, कमिंग बैक टू दिस नाउ, 100 ml ऑफ 0.1 मोलार। तो अभी ये 3 स्टेप देखो, समझा कि नहीं, 1 by 1। 1000 to 100 किया, 0.1 हो गया, 1 to 0.1 किया, 0.01 हो गया। तो 1 mole needed 5 mole of electron, so 0.01 mole will need 0.05 mole, तो 0.05 Faraday multiply by 96,500, that is the answer. लास्ट सम ऑफ दिस टाइप, ये टर्म बहुत दिन पहले हम लोग ने मोल कॉन्सेप्ट में सुना था। जब भी आप लोग ग्राम एटम लिखते हो या फिर ग्राम आयन लिखोगे, इसका मतलब है मोल। मोल का ही दूसरा वर्ड है ग्राम आयन या फिर ग्राम एटम। सो व्हेन द प्रॉब्लम सेज 1 gram iron, so I am going to read in my mind 1 mole n-3। so अगर 1 mole n-3 है तो चार्ज कितना दिख रहा है मुझे, -3, मतलब है 3 फैराडे। बस प्रॉब्लम ओवर। Can we go ahead? Everyone all right with this? यस। So let us go for second concept after this Faraday. The mass deposited on that electrode. So उसके लिए हम लोग एक सिंपल प्रोसेस यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं मोल रेशियो बाय दिस इक्वेशन, देन वी फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एंड देन वी फाइंड द मास। अब ये फॉर्मूले बड़बड़ करके कुछ फायदा है नहीं, अनलेस आई शो यू द प्रॉब्लम यू विल नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल एनीथिंग। सो लेट अस गो टू द प्रॉब्लम, बस इसी इतने पार्ट पे प्रॉब्लम है।
Please read the first problem which I'm displaying here. ये है पेज 49 पे आपके बुक में. I have given you maximum practice आपके टेक्स्ट बुक में, जस्ट 2-3 प्रॉब्लम्स है खाली इसके. चलो, read the problem first. During electrolysis of molten calcium chloride, 0.8 ampere current is used. Passed for 1 hour, atomic mass of calcium is given. Calculate the mass of the product. मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा हूं, हम लोग सॉल्व करके देखेंगे. Substance given to us is calcium chloride. Current used is 0.8 ampere. Time utilized is 1 hour. Calcium का atomic mass is 40. And we have to find how much amount of calcium is deposited on the electrode. Step number 1. Calcium is +2. So it will gain 2 electron in the reduction to produce calcium atom. इससे हम लोगों को मिलेगा जो वहां पे वर्ड यूज किया था, मोल रेशियो. So what is mole ratio? Number of moles of product divided by number of moles of electron. This is moles of product divided by, ये स्टेप ध्यान में रखना, moles of electron used. स्टेप नंबर 2, अभी हम लोग फाइंड करेंगे मास ऑफ कैल्शियम. तो उसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, करंट इनटू टाइम अपॉन फैराडे इनटू मोल रेशियो इनटू एटॉमिक मास. सो करंट है अपने पास 0.8, टाइम 1 आवर दिया है. कभी भी फैराडेस प्रॉब्लम में ये सेकंड्स में होना चाहिए. मोल रेशियो, एटॉमिक मास, जो आएगा आपका आंसर. प्रॉब्लम फिनिश्ड. ये लेवल के प्रॉब्लम्स आपको आएंगे एचएससी में, सीईटी में, नीट में. मैं जेई की बात नहीं कर रहा हूं, जेई में थोड़ा एक लेवल हायर आएगा. इज द प्रॉब्लम स्टेप्स, ऑल द 2 स्टेप्स अंडरस्टूड एवरीवन? एनी डाउट? उसी प्रॉब्लम को यहां दिखा रहा हूं मैं सॉल्यूशन के साथ. बोलो. Mole ratio. What will be the mole ratio of water then? It has multiple products. रुक. नहीं, ये हम लोग जो लॉ यूज कर रहे हैं ये एलिमेंट्स के डिपोजिशन के लिए, मेटल डिपोजिशन के लिए. जब नॉन मेटल आएगा, गैस इवॉल्व होगा, तो और कुछ आएगा, वो दिखाऊंगा मैं, है अपने सिलेबस में. क्योंकि गैस होता है तो मास नहीं होगा, वहां पे वॉल्यूम आता है. वो भी प्रॉब्लम है अपने कोर्स में, है अभी 2 मिनट में दिखाऊंगा. अच्छा, अभी ये प्रॉब्लम्स में वो लोग कुछ भी अलग अलग अननोन रख सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ मास रखा था, वो लोग करंट अननोन बना सकते हैं, टाइम अननोन कर सकते हैं, एटॉमिक मास भी अननोन कर सकते हैं. तो इतने सारे पैरामीटर में से एक अननोन आपका रहेगा कुछ भी. चलो, आई एम डिस्प्लेइंग सेकंड प्रॉब्लम. प्लीज गो थ्रू दिस. स्मॉल करेक्शन हियर, दिस इज CU, not CA. अभी अपना इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बचा है, बायोमोलिक्यूल्स, एंड योर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस विल बी ओवर. वी विल स्टार्ट विथ रिवीजन आफ्टर दैट. और छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स चैप्टर में से बीच में से बचे हुए, जैसे सरफेस केमिस्ट्री करके एक टॉपिक है, फिर मेटालर्जी छोटा टॉपिक है. तो ये सिर्फ नीट और जेई वालों के लिए टॉपिक्स है, लेकिन छोटे हैं और वेटेज भी कम है इसका. दोज विल कंटिन्यू. आप लोग अभी बैठ के थोड़ा अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन करके देखो कि आपको कौन से पॉइंट्स रिवाइज करने के टाइम आपको कौन से पॉइंट्स टफ लगते हैं. यू प्लीज टेक्स्ट मी दोस टॉपिक्स, सो वी विल अरेंज डाउट्स लेक्चर्स ऑफ दोस पॉइंट्स. ऑर्गेनिक तो मैं पूरा रिवाइज करने वाला हूँ. ऑर्गेनिक मुझे बताओ ही मत, मैं, आप बोलोगे नहीं तो भी मैं रिवाइज करने ही वाला हूँ. ऑल रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स, ट्रिक्स, एवरीथिंग आई विल रिवाइज. कंटिन्यूएशन में ऑर्गेनिक रिवाइज करेंगे, बीच में हम लोग कुछ नहीं रखेंगे दूसरा. इसके अलावा आप रिवीजन देखोगे, अभी आप गो बैक एंड स्टार्ट collecting everything together, revising everything together.
टेस्ट आएंगे, आप रिवाइज करते हो एंड यू टेल मी वॉट एवर यू वॉन्ट, वी विल कीप। फॉर एग्जाम्पल अगर बीच में आपको लग रहा है, चलो फॉर एग्जाम्पल हेस लॉ याद नहीं आ रहा है, तो जस्ट टेल मी सच थिंग्स। So, हाँ बोलो। I saw the CET portion. So I think there हाँ, is one topic called adsorption and colloids. that is called surface chemistry. Oh, In JEE and NEET they call it surface chemistry. चलो we go ahead. Question number 3 देख लो। Current is asked here. As I said, कुछ ना कुछ इसमें अननोन रहेगा, यहाँ पे करंट अननोन है। ओनली प्रॉब्लम इज टाइम हैज टू बी इन सेकंड्स, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन क्वेश्चन 4, 5 सब सेम ही है, तो मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। जहाँ पे अलग चालू होता है वो पार्ट में आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन 7 ये शीट में भेज दूंगा तो आप बाकी का देख सकते हो, जो सेम है। आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। क्वेश्चन 7 तक कुछ अलग है नहीं। नाउ कम्स क्वेश्चन 8, ये देख लेना। इसमें मोल्टन बेरियम क्लोराइड है and they are asking us what volume of chlorine gas will be liberated. तो जहां पे किसी भी Yusai was asking me about that water thing, तो जहां पे कहीं पे भी आपके पास gaseous product आता है तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा एंड यू कैनॉट यूज दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो हम लोग छोटा मॉडिफिकेशन करेंगे इसमें। लुक एट दिस। तो बेरियम का पार्ट वही है मेटल का, वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्लोरीन वाला देख लो। तो क्लोराइड का आपने इक्वेशन लिखा, यू अंडरस्टूड देयर आर 2 moles of electron obtained. So product was 1 mole, electron were 2 moles. So this is 1/2. अभी इस केस में दोनों आपके एक ही साइड में, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोडक्ट दोनों एक ही साइड में है, राइट हैंड साइड में, डजंट मेक अ डिफरेंस। नाउ सी द डिफरेंस। हम लोग यहाँ मास नहीं फाइंड करेंगे, यहाँ सिर्फ हम लोग मोल फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन में फर्क देखो, I into T upon 96,500 into मोल रेशियो। मैंने क्या मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे, आगे एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो हम लोग को नंबर ऑफ मोल मिल गया। देन वी यूज आइडियल गैस इक्वेशन टू फाइंड द वॉल्यूम। सो जिस किसी रिएक्शन में गैसियस सब्सटेंस आता है तो वहां पे आपको ये स्टेप्स करना पड़ेगा। So can you explain it again? Yes, have a look. I'm just generalizing it over here. I'll just generalize it here. Whenever you are doing Faraday's law problem, I'm giving a generalized procedure. You take a screenshot of this. So Faraday's law हम लोग दो चीज के लिए यूज कर सकते हैं। एक है मेटल डिपोजिशन। मैं आपको जनरल प्रोसीजर दे रहा हूं, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट लेटर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। सो Mn plus n electrons giving n. Then we find mole ratio. So mole ratio आएगा यहां पर moles of product divided by moles of electron. And second step we do mass deposited equal to current time 96,500 mole ratio into atomic mass. Everyone is clear about this part? Perfectly okay. ये अभी तक सबसे ज्यादा हम लोग ने देखा। Now comes second point. When it is for gaseous substances, I will say gas evolution. So we have, suppose let us say M generating M minus generating M plus electron, mostly oxidation रहता है, तो मोल रेशियो फाइंड करेंगे उस तरह से सेम वे। और मोल रेशियो के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा मोल्स इक्वल टू I into T upon 96,500 into मोल रेशियो। और थर्ड स्टेप इज PV equal to nRT to find volume of the gas liberated.
So the 3 steps you can see are 1, 2 and 3. Please make a note of this. These are the only 2 types of problems you get under Faraday's laws. Rather, Faraday's first law चल रहा है, Faraday's second law काफी ऐसे ही है, एकदम easy, इससे भी easy है. HSC में 1-2 साल continuously they were asking gas evolution problem. ये पूरा सिलेबस HSC सब जगह सेम ही है. बोलो. But for water, you get 2 products, ना? हाँ, तो उसमें से कौन सा ये देना है आपको, रिएक्शन जो है उसका पूछा है. They will ask for only one substance. Substances might be different. हम लोग एक ही के लिए कैलकुलेट करेंगे. तो हम लोग ऑक्सीजन का करेंगे तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही कैलकुलेशन करेंगे. समझा? Yes. So we have to calculate only with respect to the substance asked in the problem. तो ऑक्सीजन के लिए है तो ऑक्सीजन का लिखो, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन का लिखो, वैसे. Okay, let us come to Faraday's second law for a moment and then come back to the numericals. अच्छा, Faraday's first law का और एक implication है, ये gaseous product के लिए है. इसका मैं आपको डेरिवेशन वगैरह नहीं दे रहा हूं, ये आप डायरेक्टली बाय हार्ट करो. In some reaction where hydrogen gas is liberated and if 1 Faraday electricity is passed, then it will evolve always 11.2 decimeter cube at STP. Also for chlorine 11.2 and for oxygen 5.6. When I will do a NEET and JEE part with all of you other students, I'll explain how these numbers have come also. Today I will not go in details of it. We come to Faraday's second law. Faraday's second law is basically for those electrolytic solutions which are connected in series. And for them, the equation used is like this. Moles of A produced in one circuit upon moles of B produced in another circuit is equal to mole ratio of A upon mole ratio of B. हम लोग अभी तक जो Faraday's law कर रहे थे वो सिंगल सब्सटेंस के लिए था. एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और उसमें सोडियम मिल गया, मैग्नीशियम आ गया, कॉपर आ गया. अभी Faraday ने क्या किया थोड़े साल बाद, उसने 2 सर्किट्स को सीरीज में कनेक्ट करके एक ही साथ 2 कंटेनर में 2 एलिमेंट को डिपॉजिट किया. So what is the mathematical relation between them? So you can see numerical problems on this. Look at question number 9. I'm marking the important thing. 1.55 gram of silver, 1 cell. Mass of zinc we need to calculate. और दोनों का एटॉमिक मासेस दिया है. बाकी इतना सारा प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं उसमें. तो हम लोग को क्या करना है, सिल्वर का पहले मोल रेशियो निकालेंगे, सिल्वर के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. तो 1.55 अपॉन 108 ये हो गए सिल्वर के मोल्स. वैसे ही जिंक का मोल रेशियो निकालेंगे. तो मोल ऑफ जिंक अपॉन मोल ऑफ सिल्वर इज मोल रेशियो ऑफ जिंक अपॉन सिल्वर. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिल्वर के मोल्स निकाले, उस मोल्स को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया, मास मिल गया. मैंने बहुत फास्ट बताया आपको, आराम से शांति से एक बार पूरा प्रोसेस देखो. ये जब सर्किट सीरीज में करेक्ट होता है तभी ये पॉसिबल है. आपको जब किसी प्रॉब्लम में 2 एलिमेंट्स दिखेंगे, समझ जाने का फैराडे सेकंड लॉ का ये प्रॉब्लम है. मोल रेशियो के बाद क्या करना है एक बार repeat? किसमें? आफ्टर फाइंडिंग द मोल रेशियो. ये पहले एलिमेंट का निकाला, ये सेकंड एलिमेंट का निकाला. ठीक है, मोल्स निकाले. इसके मोल्स तो अपने को पता ही नहीं है, निकालना है, राइट? तो मोल ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड, मोल रेशियो ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड.
सर ये मोल्स ऑफ एज मतलब मास अपॉन मोलर मास। मास अपॉन, हाँ रेगुलर अपना मोल कॉन्सेप्ट पुराना वाला। चलो इसी का और एक दिखाता हूं। इसमें एक एलिमेंट है सिल्वर, दूसरा एलिमेंट है एक्स अननोन, पता नहीं क्या है, बाकी सब प्रॉब्लम बहुत सिमिलर है। So here X is not halogen, right? No, not halogen. One last problem of this type I've kept for your solving, quite similar. Aluminium and copper is given. So let us continue with the last part of this. I think that is all under this. I'll go back quickly to the last problem which is left over. ये दोनों प्रॉब्लम सिर्फ नीट और जेई वालों के लिए, उसमें से इनफैक्ट क्वेश्चन 13 ये नीट 2008 का एक्चुअल प्रॉब्लम है. So let me show you this first one. How long has a current of 3 ampere to be applied so that silver nitrate will coat with a metal surface 80 centimeter square and 0.005 millimeter thick layer? This is a very common thing which jewelers do every day, coating the element, electroplating process. तो इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए फैराडेज लॉ पे दुनिया चलती है. एवरी ज्वेलर नोज फैराडेज लॉ. ऑफ कोर्स उनको फैराडे कौन है पता नहीं होता है, लेकिन वो फैराडेज लॉ यूज करके सब कुछ करते हैं. सो व्हाट इज द लॉजिक? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड मास ऑफ सिल्वर व्हिच इज टू बी डिपॉजिटेड. मास ऑफ सिल्वर इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बट वॉल्यूम इज एरिया इनटू थिकनेस, क्योंकि अपने पास एरिया और थिकनेस अवेलेबल है. So when somebody is ordering a jeweler to have 80 centimeter square and this much millimeter thick, he wants 0.42 gram silver to be deposited on the plate. अभी हम लोग फैराडेज लॉ यूज करेंगे, और फैराडेज लॉ में टाइम अपने पास पता नहीं है कितना है, बाकी सब कुछ दिया है. तो मैं ये 3 एम्पियर का करंट टोटल अगर इतने सेकंड तक मशीन में चलाऊंगा तो मुझे इतना सिल्वर डिपॉजिट होगा. अगर ज्वेलर्स को ये पता नहीं है तो वो दे विल आइदर गो इन लॉस और दे विल अननेसेसरी मेक रॉन्ग प्रॉफिट. बाद में लोग आके मारेंगे उनको. तो हाउ मच एक्यूरेसी यू नीड इन दिस एक्सपेरिमेंट्स यू कैन सी. गोल्ड प्लेटिंग आप ज्वेलरी देते हो, सिल्वर प्लेटिंग सब इसी से चलता है. इसका ये बेस्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट लास्ट वन अंडर दिस. कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी required to reduce 12.3 gram nitrobenzene to aniline, and the device current efficiency is only 50%. Voltage of 3 volt is applied. इतना डिफिकल्ट सम आज तक कभी नीट में पूछा नहीं था, इसके बाद आया नहीं है, और जेई में तो आज तक पूछा नहीं है. पहली बात, ये जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं यही आपके सिलेबस में कहीं पर भी नहीं है. दैट इज द प्रॉब्लम. 2008 मतलब बहुत पुराना प्रॉब्लम है ये. दिस इज nitrobenzene which needs 6 H plus and 6 electron to convert into aniline. Molar mass is calculated. So 1 mole, 123 gram will need 6 Faraday. So 12.3 gram will need 0.6 Faraday. So current actually, क्योंकि मशीन 50% एफिशिएंसी पे चल रहा है, तो 0.6 की जगह आपको लगेगा एक्चुअली 1.2 फैराडे. तो एनर्जी विल बी फैराडे, मतलब ये फैराडे कन्वर्जन इनटू वोल्टेज यूज्ड. दिस इज द एनर्जी नीडेड. एक स्पेशल प्रॉब्लम करके ध्यान में रखना इसको, कभी फिर से आया तो आपको आना चाहिए. ओके, डीपीपी 1 सब लोगों का हो गया स्टार्ट सॉल्विंग.